میرے یوٹیوب چینل محمد احمد مظاہری میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کورل ڈرا کے اندر بہت ہی آسانی کے ساتھ شادی کارڈ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں، کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کورل ڈرا کو اوپن کر لیتے ہیں۔ اوپن کرنے کے بعد ہم یہاں سب سے پہلے پیج کا سائز بنا لیں گے۔ ہر شادی کارڈ کا سائز مختلف ہوتا ہے، تو اس لیے اپنے حساب سے ہم شادی کا کارڈ اس کا سائز جو ہے وہ یہاں سے بنا لیں گے۔ چلیے میں اس پیج کی چوڑائی 10 انچ اور لمبائی اس کی 8 انچ کر کے اس کو اوکے کر دیتا ہوں۔ تو یہ شادی کا کارڈ جو ہم بنانے جا رہے ہیں، یہ ایک پیج کے اندر کا جو میٹر ہوگا وہ 2 صفحوں میں ہوگا۔ ایک صفحہ اردو میں ہوگا اور دوسرا صفحہ ہندی میں ہوگا۔ تو چلیے سب سے پہلے اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے ہم نے ایک گائیڈ لائن بیچ میں رکھ لی تاکہ ایک صفحہ ادھر ہو جائے اور ایک صفحہ ادھر ہو جائے۔ اب ہم سب سے پہلے ہم نے یہاں بارڈر اور لائننگ رکھ رکھی ہے، تو اس کو لے کر کے آ جائیں گے۔ کارنر رکھ رکھے ہیں، اب اس کو دیکھنا یہ ہے کہ کیسے یہ ڈیزائن ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو غور سے دیکھ کر کے میری اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں گے اور انشاءاللہ آپ کو بہت ہی جلد شادی کارڈ ڈیزائن کرنا آ جائے گا۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم اس کارنر کو بیچ میں رکھ لیں گے۔ یہ کارنر جو ہے ہم اس کو لا کر کے ایسے یہاں بیچ میں رکھ لیں گے، اور بیچ میں رکھنے کے بعد اب یہ جو لائننگ آپ کو نظر آ رہی ہے، اب اس کو اور بڑھائیں گے۔ بڑھانا یہ ایسے ہے کہ بالکل سینٹر میں رہے اور صحیح رہے۔ تو چلیے یہ دیکھتے ہیں کس طریقے سے اس کو ہم صحیح کرتے ہیں اور سیٹ کرتے ہیں۔ اس کو بالکل بیچم بیچ لے آئیں گے۔ تو بیچم بیچ لانے کے بعد اس کے بعد پھر اسی طریقے سے ایک یہ جو برابر کی لائننگ ہے، اس لائننگ کو بھی ہم اس طرف لگا دیں گے۔ تو لگانے کے بعد اب اس کو بھی چیک کر لیں گے زوم کر کے کہ صحیح آیا یا نہیں۔ تو اس کے بعد اس کو بالکل صحیح کرنے کے بعد پھر ہم یہ جو ادھر کی نیچے کی ایک یہ لائننگ دکھ رہی ہے، اس کو اپنے حساب سے اچھے سے سیٹ کر لیں گے۔ تو سیٹ کرنے کے بعد اب اس کو ایسے یہاں بیچ میں رکھ لیں گے، اور یہ جو ادھر آپ کو 2 اور کارنر دیکھ رہے ہیں، تو یہ کارنر جو ہے یہ اس کو ہم ایسے صحیح سینٹر میں لا کر کے اس لائننگ سے ملا دیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں زوم کر کے کہ لائننگ سے صحیح سیٹ ہوا یا نہیں۔ تو تقریباً یہ صحیح سیٹ ہو گیا ہے۔ اب اگر سیٹ نہیں ہوا تو آپ چیک کر سکتے ہیں زوم ان کر کے کہ صحیح سیٹ ہوا یا نہیں۔ ایسے ہی ہم اس والے کارنر کو بھی ہم ادھر رکھیں گے اور اوپر کی لائننگ سے سیٹ کریں گے۔ زوم ان کر کے پھر اس کو دیکھیں گے کہ صحیح لائننگ سے اوپر ٹچ ہوا یا نہیں۔ تھوڑا فرق ہے تو اس کو ایرو سے ادھر لائیں گے اور دیکھیے بالکل لائننگ بالکل سیٹ ہو چکی ہے۔ تو اس کے بعد ہم اس کو زوم آؤٹ کریں گے۔ زوم آؤٹ کرنے کے بعد جو ہماری یہ نیچے کی یہ لائن ہے، اس کو ایڈجسٹ کریں گے۔ اس کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس کو ہم زوم ان کریں گے اور چیک کریں گے کہ یہ صحیح سے ایڈجسٹ ہوئی یا نہیں۔ ابھی دیکھو اس میں کتنا گیپ ہے، تو اس کو ادھر سے لا کر کے ایسے اس میں کھینچ کر اس میں ٹچ کر دیں گے۔ ٹچ کرنے کے بعد
ये देखेंगे कि ये लाइनिंग सही हुई या नहीं। नीचे की साइड इसको हल्का सा लाएंगे, नीचे से लाने के बाद ये तकरीबन बिल्कुल सही हो गई। इधर से चेक करेंगे कि इधर ये लाइनिंग कैसी है। तो ये यहाँ पे ऊपर चढ़ रही है, इस लाइनिंग पर टच करेंगे और इसको खींच करके थोड़ा इधर की तरफ ले जाएंगे। ले जाने के बाद अब इसको चेक कर लेंगे कि लाइनिंग सही है या नहीं। अभी थोड़ा फर्क आ रहा है, देखो। तो उसके बाद अब इस लाइनिंग को टच करने के बाद ऊपर की तरफ जाएंगे और इसमें इसको टच कर देंगे। ये टच करने के बाद जूम आउट करने के बाद अब ये इस तरीके से हमारा जो ये शादी का कार्ड ये डिज़ाइन हो रहा है उसका गोया ये एक सफ़ा तैयार हो गया। अब चूंकि हमें एक उर्दू का सफ़ा रखना है और नीचे हिंदी का सफ़ा रखना है, तो जिस तरीके से हमने ये एक सफ़ा पूरा बॉर्डर के साथ तैयार कर दिया, तो इन सब को अब कंट्रोल जी के साथ ग्रुप कर लेंगे और ग्रुप करने के बाद इसको फिर नीचे की तरफ ले आएंगे। ऐसे इसको नीचे लाने के बाद कंट्रोल जूम से जेड से वापस, इसके बाद इसको खींच करके अब ऐसे नीचे लाएंगे। अब नीचे लाने के बाद अब इसको छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं बल्कि राइट क्लिक करना है और बाएं को भी अभी दबाए रखना है। तो जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो बाएं क्लिक को छोड़ देंगे तो ये एक कॉपी हो जाएगा। इस तरीके से ये दो सफ़ों का एक शादी का कार्ड जो है ये हमारा सेट हो गया। इसको जूम करके चेक कर लेंगे कि सफ़ा आगे पीछे तो नहीं हो रहा। तो अब ये आगे पीछे जो हो रहा है इसको हम सबसे पहले तो इन दोनों सफ़ों को अलग अलग तरीके से ऐसे कंट्रोल जी करेंगे, ग्रुप हो जाएगा। फिर ऊपर का सफ़ा भी ऐसे ही कंट्रोल जी करेंगे, ग्रुप हो जाएगा। तो ग्रुप करने के बाद अब इनको हम चेक करेंगे कि दोनों आपस में बराबर है। अगर कुछ फ़र्क है तो उन सफ़ों को बिल्कुल एडजस्ट कर देंगे, एक दूसरे के बराबर में कर देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद हम इसको जूम आउट करने के बाद अब आप यहाँ उर्दू मैटर को इन पेज से लिख करके लाएंगे और यहाँ कॉपी और पेस्ट करके यहाँ अपने एतबार से एडजस्ट कर देंगे। अब मैंने पहले ही मैटर रखा हुआ है, तो चलिए मैं उस मैटर को आपको लगा करके दिखा देता हूँ। ये मैंने पहले से तैयार करके रख रखा है। तो इस तरीके से आप अलग अलग लिख करके थोड़ा थोड़ा लाते रहेंगे इन पेज से और यहाँ कॉपी और पेस्ट करने के बाद आप इस तरीके से इसको एडजस्ट करेंगे। तो चलिए ये मैंने पहले ही रखा हुआ है, तो हम उस पेज पर जाते हैं और फिर इसको यहाँ पर एडजस्ट करके बिल्कुल पहले सफ़ा जो हमारा उर्दू का हम बना रहे हैं उसको उसके पास रख देंगे और अपने तरीके से इसको सेट कर देंगे। इस तरीके से हमने ये इसको सेट कर दिया। आप तो लिख करके लाएंगे इन पेज से उर्दू को और यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे और इस तरीके से अपने एतबार से एडजस्ट कर देंगे जैसे आपको छोटा बड़ा जो लफ्ज़ रखना है उसको। इसी तरीके से मैं हिंदी भी मैंने लिख कर रखी हुई है, तो आप इसी तरीके से हिंदी का पेज भी एक यहाँ लिख करके बिल्कुल तैयार कर देंगे और उसके बाद इस हिंदी के पेज को कंट्रोल जी से ग्रुप करके फिर आप एडजस्ट कर देंगे और ये इस तरीके से आपका दूसरा सफ़ा भी तैयार हो जाएगा। अब आप एक दफ़ा से अच्छे से चेक कर लेंगे कि मैटर कहीं बॉर्डर वगैरह से नहीं टच हो रहा। अगर टच हो रहा है तो उसको आप इस तरीके से हल्का सा ऊपर की जानिब कर देंगे और करेंगे ताकि जो मैटर है वो बिल्कुल हमारा बॉर्डर से या कहीं भी कॉर्नर वगैरह से टच ना हो।
تو इस तरीके से आप एडजस्ट करने के बाद फिर ये जूम आउट करके देखेंगे कि कहीं ये टच वगैरह तो नहीं हो रहा है कॉर्नर से मेटर। तो इस तरीके से देखो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा उर्दू का पेज हो गया और ये हिंदी का पेज हो गया। इस तरीके से हमने ये बहुत ही आसानी के साथ ये शादी का कार्ड डिज़ाइन कर दिया है। देखिए ये कितना खूबसूरत और कितनी बेहतरीन अंदाज में ये इसको तरतीब दिया गया है। आप भी इसी तरीके से उर्दू इन पेज से ला करके और यहाँ अपने हिसाब से सेट करेंगे और हिंदी यहीं से ही लिखी जाएगी। हिंदी का जो ये फ़ॉन्ट है वहाँ से सेलेक्ट करने के बाद जिस तरीके से आप ये टेक्स्ट टूल लेंगे, टेक्स्ट टूल लेने के बाद यहाँ से आप हिंदी को जो आपके फ़ॉन्ट है कंप्यूटर के अंदर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद लिखना शुरू कर देंगे। इस तरीके से लिखने के बाद फिर हिंदी वाले सफ़े में आप अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। अब देखिए हिंदी का भी और उर्दू का भी कितना अच्छा ये शादी का कार्ड हमारा तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान अंदाज में और अच्छे तरीके से शादी का कार्ड डिज़ाइन करना सीख सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी दूसरी नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।